bulletin. Introduction and the theme. Again, critical appreciation. Wilbur is best known for his poetic intelligence and philosophy of life, and this is well explicit in his poems at large and in After Last Bulletin in particular. Wilbur points to very important fact of life of what is significant today may become insignificant tomorrow. विल्बर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ के बारे में एक पॉइंट रेज करता है कि आज जो चीज सिग्निफिकेंट है शायद वो कल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी. आज जो न्यूज़पेपर हमें सिग्निफिकेंट लगता है या आज जो नॉलेज हमें सिग्निफिकेंट लगता है वो कल हमारे लिए शायद इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. He takes the newspaper for example and says that newspaper which are fresh today and most welcome for and accepted for reading become stale and useless the other day. और वो जो न्यूज़पेपर जो आज फ्रेश है और आज हम उसको बड़े दिल से ले रहे हैं लेकिन और आज वो एक्सेप्टेड भी है फॉर रीडिंग लेकिन कल हो सकता है कि वो यूजलेस हो जाए. द पोएम इज पिक्टोरियल इन नेचर एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी विच इज अ टिपिकल क्वालिटी ऑफ विल्बर. अक्सर ये इमेजरी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, इमेजरी इन एनी पोइट आ सकता है और ये टिपिकल क्वालिटी है विल्बर की. नॉट ओनली विल्बर, जितने भी हम अमेरिकन लिटरेचर में पोएट्स पढ़ेंगे सबकी है. ही टेल्स अस व्हाट हैपेंस टू द न्यूज़पेपर आफ्टर दे हैव बीन रीड थ्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस. द एडिटर पब्लिश द पेपर्स एंड फॉल इनटू अ डिलीशियस slumber, but their printed newspaper toss and tumble all over the city, get splashed by mud and torn by spikes of railings. They are carried away by wind where it flows. They travel through streets, gutters, and deserted places and faded insignificantly into nothingness. The papers which are read enthusiastically in front of eyes and placed securely on shelves are trampled down by feet after they have become outdated. This is not the whole story. They are again printed and held important like the other day, and this cycle keeps repeating all the time. The poet says that life is not motionless or stagnant. The old order is replaced by the new order. कि लाइफ जो है वो स्टैग्नेंट नहीं है. ओल्ड ऑर्डर हमेशा रिप्लेस होता है बाय न्यू ऑर्डर. द ओल्ड जनरेशन मस्ट गिव वे फॉर द न्यू वन. What is important today will fall into nothingness tomorrow. What is the way of the world? Things have worked the same way and will continue to be the same till the end. Things will keep like this forever. What is important in life is to keep pace with it. A critique of After Last Bulletin. अब क्रिटिक देख लेते हैं. अच्छा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने का तरीका क्या होता है? अब देखिए इसमें आपको पूरे वो जो उसके स्टैंजास है ना उसकी समरी मिली है विद इन 3 सेक्शंस. ठीक है, 3 सेक्शंस में उसने आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए कि ये जी जनाब इसकी समरी है ना. अब हम इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या इंट्रोडक्शन है, देन क्या थीम्स हैं और ये सारी चीजें. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Richard Wilbur is a modern poet, chooses modern themes and topics. He lives in scientific age, but he does not speak out the scientific discoveries. He discusses fact of life. After the Last Bulletin is about various facts of life. The most important aspect is waste. Human efforts are geared towards collections of information. हमारी सारी efforts जो है वो कहाँ लगी हुई हैं? Collections of information, collecting tons of information. इतनी information हमारे पास and provide it for the common man. और हम इसको किसकी प्रोवाइड करते हैं? हम कॉमन माइंड. द पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन, लोग रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, स्टडी इट कैजुअली, थ्रो इट हार्टलेसली. दे डोंट एंजॉय रीडिंग द न्यूज़पेपर. This printing of newspaper is cycled every day and it is taken to be routine matter rather than a serious one. Even this producing of newspaper is not done for a noble cause. Perhaps only for the sake of routine or business itself. There seem to be a waste everywhere. In information technology, scientific knowledge, and economic productivity, after the Last Bulletin, citizen criticizes man's preoccupation with modern media. अब वो न्यू मैन को, मॉडर्न मैन को कितने प्रीऑक्युपाइड है मॉडर्न मीडिया से. हर वक्त सारा दिन हमारे घरों में, स्पेशली हमारे एल्डर्स, घर में फादर्स और मदर्स और पता नहीं सारी दुनिया जो है मीडिया में गुम है. और अब तो और ही इंतहा हो गई ना. यूट्यूब भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया. कोई चीज छोड़ी है मीडिया ने?
हर किसी की अपनी अपनी दुनिया, अलग अलग टैबलेट है, अलग अलग लैपटॉप है, अलग अलग मोबाइल है, एंड्रॉइड है, और हर इंसान मीडिया में घुसा। Media has become very important in 20th century, and today its importance cannot be denied. Though the poem is about last bulletins and the subsequent results, yet it raises certain issues about the facts of life, ranging from ignorance to knowledge, the blessing of sleep, waste in human life, degrading of human society, and complexity of human nature. Some of these themes are obvious and are not easy to find out, but the rest of them difficult to understand. Thought the poem because of its ambiguity, as is the case with most American poems, because they are too intellectually designed for a common mind. डेवलपमेंट ऑफ थॉट देख लेते हैं इसमें. डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स मीन कि इसके अंदर थीम्स क्या क्या है. सबसे पहली थीम है अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस. देखते हैं जनाब क्या अबंडेंस ऑफ नॉलेज है इसके अंदर. The poet speaks about the abundance of knowledge in the modern age. The production of newspaper and their presence everywhere actually symbolizes the abundance of knowledge scattered around and easily accessible to human mind. We do utilize this information and keep ourselves in touch with day-to-day happenings, but it is the irony of our life that despite this craze for gathering and collecting information, man's knowledge of truth has really not improved. Man is in ignorance as he has become this abundance. Even he has acquired this knowledge through various sources. He uses it in counter attitude and opposites. We do collect facts, but we ignore the spiritual reality behind them. So we can say that man has advanced in the field of information technology, but he is spiritually declined. आज हम इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली डिक्लाइंड है. द मोर इंफॉर्मेशन ही हैज, द मोर इग्नोरेंट ही हैज कम टू बी. जितनी आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतने ही हम इग्नोरेंट है. और मैंने क्या बताया कि अगर इल्म अमल में ना आए तो क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. आपका इल्म अंदर ही अंदर से आपको तंग करता है. अगर वो अमल में नहीं आया तो यू विल बी नेवर बी अ spiritual personality or a humble personality. Despite this abundance of information which is flying all around, human nature is not understood. इतनी information के बाद which is flying all around, आज भी इंसान की नेचर को आप समझ नहीं सकते. एंड रियल पीस इज सॉट इन एवरीडे एक्टिविटीज. और ये जो रियल पीस जो है वो शायद हम ढूंढते हैं किसमें, एवरीडे एक्टिविटीज में. इल्म हम क्यों हासिल करते हैं, मैंने वही बताया ना, हमें हमारे जहन में यही है कि शायद हम इल्म हासिल करेंगे और हमें सुकून मिल जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमें पैसा मिल जाएगा, इसीलिए तो इल्म हासिल कर रहे हैं. हालांकि इल्म हासिल करने में और जिंदगी में सुकून लेके आने में दैट इज अ टोटल टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सुकून ऐसे नहीं आता, इल्म हासिल करने से कम नहीं आता. और एक्सेस ऑफ इल्म होगा तो फिर बस आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. एक्सेस ऑफ नॉलेज इन अ सेंस के आपके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज है लेकिन आपकी पर्सनालिटी है दैट इज जस्ट शैटर्ड एंड दैट इज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड. अगर आपकी पर्सनालिटी शैटर्ड है इतने एक्सेस ऑफ नॉलेज के बावजूद, फिर आपका तो नॉलेज भी आपको कोई कुछ भी नहीं दे सकता. फिर है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स द विंडोज डार्कन एंड द होल सिटी फाउंड रेडीली स्लीप. कि लास्ट बुलेटिन के बाद जब विंडोज डार्कन हुई तो तमाम सिटी फाउंडर्स जो है वो रेडिली डीप स्लीप थे, स्लाइडिंग ऑन इट्स पिलो, अपने पिलोस पे ऐसे सो रहे थे. टू द थ्रॉन्ग एटलस, जैसे एटलस का पहाड़ है इन द ओशन ऑफ पर्सनल स्लीप. वो अपनी पर्सनल स्लीप में ऐसे सोए हुए थे, यानी कि पिलो के ऊपर ऐसे सर रख के सोए हुए थे. द ओशन ऑफ स्लीप इज वेरी calm like Atlantis. In sleep, a new world of ideas open in which poem addresses some issues. The concept of new world and the new power is furthered throughout the imagery of mind, which rises as sun as we sleep and turn off our lights. In sleep, a new world emerges. This is the world of agitations and questions which arise from our inner self in sleep, which challenge the people who are proud of their knowledge. Perhaps it is due to these that we drown ourselves in daily activities to avoid the prick of our conscience.
हम अपने आप को डेली एक्टिविटीज के अंदर क्यों इन्वॉल्व करते हैं? ताकि हम अवॉइड कर सकें अपने कंसाइंस के ट्रैक को। अक्सर 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 लोगों से मैं मिलती हूँ और दे वांट टू टेल मी, और वो मुझे ये चीज़ बताते हैं कि हम जो है इसलिए अपने आप को बिजी करना चाहते हैं क्योंकि हम लाइफ में तंग आ गए। एक्चुअली लाइफ से तंग नहीं आए होते, उनका अपना कंसाइंस उसको ट्रैक कर रहा होता है, और उस अंदर की आवाज को दबाने के लिए ना वो अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सुकून फिर भी नहीं मिलता। In the world of nature, a new power is awakened and begins to act. The furious activities of wine defy all the false achievements, vanities, and superfluous fluidities of daily life. और ये जो फ्यूरियस एक्टिविटीज है ऑफ माइंड, वो डिफाई कर रही है उन और तमाम फॉल्स अचीवमेंट्स को, फॉल्स वैनिटीज को, और ये जो सुपर फ्यूरिटीज हैं ऑफ डेली लाइफ। हमने अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा काम लाद लिए हैं, उनकी जरूरत नहीं है लेकिन हमने लाते जरूर हुए हैं। ठीक है, अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स करें। जब हम ओवरबर्डन हो जाते हैं ना, एक तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ओवरबर्डन लीड्स टू स्ट्रेस। ये आपको साइकोलॉजिकल एक मैंने लेक्चर सुना था, साइकेट्रिस्ट ने ही बताया था, और मुझे साइकोलॉजी से काफी, ह्यूमन माइंड से एक्चुअली आया, बट कीन इंटरेस्ट इन ह्यूमन माइंड। तो जब आप अपने ऊपर जो है ना एक वक्त में एक काम किया करें, ये नहीं कि अब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, दिमाग आपका हांडी पे लगा हुआ है कि यार वो चूल्हे के ऊपर हांडी भी रखिए, बंद कर दिया करें उस हांडी को, या पीछे बच्चा रो रहा है। ठीक है, जब आप इधर आए तो इधर ही रहें। जब आप किचन में जाएं तो सिर्फ किचन में ही जाएं, मोबाइल ना उठाएं। जब आप मोबाइल उठाएं तो आधा घंटा लगाएं, उसके बाद बंद कर दें। जब आप एक ही वक्त के अंदर इतने सारे काम लाद लेंगे ना, एक्चुअली फिर आप काम भूलना भी शुरू हो जाते हैं। और अब आप देखें कि मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। लाइक लोगों का मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गया, बहुत कम एज के अंदर लोगों का मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दी स्ट्रेसेस। तो अपने आपको देखें बेटा, जिंदगी जो है ना वो आजमाइश तो आएगी। जो इंसान दुनिया में आया है, इंसान दुनिया में मुशक्कत के लिए आया ना, मुशक्कत से तो हम भाग ही नहीं सकते। ये तो कुरान में लिखा हुआ, नहीं भाग सकते। कुछ भी कर ले, इंसान आया ही दुनिया में आजमाइश के लिए, और अल्लाह ताला ने पैदा ही उसको मुशक्कत के लिए किया। तो हम एक काम से अगर फ्री होंगे, हम दूसरा काम तैयार होता है, तो वो हम निकल नहीं सकते वहां से। ठीक है, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। लेकिन अपने आप को मेंटली रिलैक्स तो कर सकते हैं। तो अब मेंटली रिलैक्स करने के लिए क्या, हमने अपने ऊपर ना सुपरफ्लुइडिटीज डाल दी। हमने बहुत सारे काम ना अपने ऊपर लाते हुए हैं। चले, एक तो हम दुनिया में आगे, हमें करनी करनी, कुछ काम हमने खुद से भी लाते हैं। अब जरा चेक करें हमने क्या क्या काम लाते हैं। व्हाट्सएप लाद लिया अपने ऊपर, फेसबुक भी लाद ली। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो सोशल सेटअप है वो भी लाद लिया। ठीक है, तो द थिंग इज दैट हमने अपने ऊपर बहुत सारी चीजें इम्पोज की हुई हैं, हालांकि उनकी जिंदगी में जरूरत नहीं है। कट डाउन दीज थिंग्स, जिनकी जिंदगी में जरूरत नहीं है उनको कट डाउन करें। देखिए आपको कितना मजा आएगा लाइफ जीने का। थोड़ी चीजें होंगी ना हैंडल करनी आसान होगी। So the point shows absolute disregard of the newspaper and magazines of the magazines of which we are proud. The mind ruthlessly tears them into shreds, flinging them. The news world in sleep questions our knowledge and challenges our achievements and show powerless we are in nature. Wilbur naturalism is fully explicit here when mocks at collective knowledge of human existence and rendered it a waste in front of mystic and religious consciousness, which should be ultimate aim of our life. उसके बाद देखें corruption of media. And the wind rises and bows. These layers of news in Alice stress tears itself into reelings, soars and falls and soft crash. The wind rises and hurls the newspaper into street. Newspaper become insignificant and therefore the power of nature. Before the power of nature. Nature is truth, media is corruption and falsehood. Nature तो truth है। न्यूज़पेपर जो है सिग्निफिकेंट है बिफोर द पावर ऑफ नेचर। नेचर जो है वो ट्रुथ है और मीडिया करप्शन और फॉल्सहुड है। व्हेन फॉल्सहुड स्ट्राइक अगेंस्ट ट्रुथ इट पैरिशेस। जब भी ये फॉल्सहुड जो है ट्रुथ के खिलाफ जब स्ट्राइक करेगी तो ये पैरिश हो जाएगा। सेम इज द केस विद न्यूज़पेपर, दे आर टॉर्न अपार्ट बाय वाइंड्स एंड बैटर्ड अगेंस्ट द सर्फेसेस
and the newspapers are unable to defend themselves because they are corrupt and strengthless. Thus, the winds reject all media. They fly like uncontrolled flight vanities, uncontrolled flight. ठीक है, आगे नेक्स्ट है वैनिटीज एंड रियल कैरेक्टर. अब जो है आपका नेक्स्ट थीम जो है देखते हैं कि वैनिटीज और रियल कैरेक्टर क्या है. द फ्लाई न्यूज़पेपर इज द पाथ वेयर वी फाइंड plenty of human being who have been symbolized here as the statue. And the wind slapped the newspaper on the face of statue as the poet said unruly flights. उनको वो unruly flights कहते हैं. Scampered the park and taking a statue for that, strike at the positive eye better and flap the solid head and strike the noble man in empathy. Lords, our generous spiral in the fire snowing. इसकी आपको सारा टेक्स्ट जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आगे हम अब जस्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं. स्टैचूज आर मोशनलेस सिंबल्स ऑफ ह्यूमन वैनिटी. ठीक है, वो जो स्टैचूज हैं वो मोशनलेस सिंबल्स हैं ह्यूमन वैनिटी के. द वाइंड अटैक्स द स्टैचू एंड स्लैप देयर फेसेस. Here lies a lesson for men that decline is our ultimate fate. Greatness is too sought in character, not in status. Otherwise, they will be attacked by nature. Character's good behavior, attitude, and action will keep us all alive even after death. Whether the weather and winds demolish constantly, they don't accept our standard of greatness such as reputation. Greatness lies in character and morality rather than actual appearances and motionless outcome. अच्छा जनाब, ये अब आप लोगों का